Welcome back. You're watching Ground Reality on Mirror Now, and here at Mirror Now, we continue to get you the latest on what's happening in the political pandemonium that has been playing out in the national capital since last evening. The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal remains in ED custody. His questioning is underway as we speak. And also simultaneously, we're expecting something from the Supreme Court on K. Kavita's plea challenging her arrest in this case. 10:30 is when the SC bench was expected to hear her plea challenging her ED arrest. But remember, on the broadcast, Yuvraj Pokrana and Zishan Haider continue to be with us. But before I go to my guest, let me also get you a breaking news that is coming in from Delhi as well as Punjab, where Aam Aadmi Party workers and supporters are out on the streets. They're protesting against Arvind Kejriwal's arrest. Remember, the Aam Aadmi Party has since yesterday called for a nationwide protest throughout the day today. They allege that this is a murder of democracy by the BJP-led centre. Also remember, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, along with other Punjab AAP leaders, are travelling to Delhi to join these protests. So the Chief Minister Bhagwant Mann, he is also expected to join the protest that is being held against Arvind Kejriwal's arrest this morning. Throughout the nation, Aam Aadmi Party is holding the protest. In fact, a short while back, their senior leader Saurabh Bhardwaj as well as Atishi addressed the media where they hit out at the BJP for this alleged political vendetta and political witch hunt that they say that the BJP is doing. Let me go to my guests on the broadcast, Yuvraj Pokrana and Zishan Haider. Yuvraj Pokrana, from day one, this has been alleged against the BJP, against the centre, that this is a political witch hunt, that there's nothing substantial that has been given, and that now that the electoral bond details are out, this is just a way of distraction to basically take away the attention from the details of the electoral bonds that have been given out by the SBI. Shreya, I prefer to speak on facts, not on rhetorics, not on high voltage drama, not on Nautanki Dramabazi and Band Baja Bharatov like Kejriwal ji. See, is he not arrested under the Section 50 of the PMLA Act? Are not the courts cognizant of the PMLA Act? And if you allege that the courts are conniving with BJP and Narendra Modi, state openly and clearly. Why to do all the sham? Why to indulge in this smearing? And Kejriwal is not the one of leader of Aam Aadmi Party. Mr. Manish Sisodia, Satyendra Jain, Amanatullah Khan, Vijay Singla, the Ratan Kaftala of Punjab, every damn leader of Aam Aadmi Party has been indulged in some form or the other form of the corruption or hooliganism. So this is not a one-off thing. And as recent as November 2023, the highest court of the land wrapped up Aam Aadmi Party for paying 1100 crores in the last 3 years for advertisement. But when they declared their bankruptcy and inefficiency in paying 415 crores for IRTS projects. So this is the very nature of Aam Aadmi Party. And I've just witnessed the press conference of Mr. Saurabh Bharadwaj by Mirror Now only. So he was talking about the old and aged parents of Kejriwal ji. I just have a simple, humble submission. Is not any criminal or any alleged criminal a part of any family? आप ये कह रहे हैं कि कोई भी तथाकथित क्रिमिनल या क्रिमिनल तो उसका परिवार नहीं होता? By the same logic, if I go by the same logic, so should I pop up the family of Ajmal Kasab? Afzal Guru की family है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए? I mean, what are they talking about? Why are we not talking on facts? And just 30 seconds last, if I were to go by the Zishan Haider, respond to that. Respond to that and also the fact कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो ये जो 9 समन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको भेजे वो उन्होंने स्किप क्यों किए? देखिए, सबसे एक बड़ी खास बात है मेरे भाई, यहाँ जो बयान कर रहे हैं बातें, इन्हें ये भी बहुत सारी इनकी जानकारी में इजाफा होना चाहिए कि इन्हें बहुत सारी चीजें बायस्ड होकर नहीं बोलनी चाहिए। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मन तो देखिए 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और केजरीवाल जी को ये अरेस्ट करना ही था, इसीलिए
ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के इस बड़े भयंकर घोटाले से लोगों का ध्यान हट जाए, जिसमें पहली बार देखिए आज तक क्या हो रहा था 10 सालों में कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ईडी भी आती है और सीबीआई भी आती है और सारा पूरा सिस्टम, पूरा अमला उनके अंडर में आता है, तो उनके घोटाले के बारे में कोई पूछ ही नहीं पा रहा था। पहली बार मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सख्ती से मतलब जो है कहा कि लाओ दिखाओ भाई कहाँ है। और देखिए एसबीआई भी वही कर रहा था कि भाई महामहिम के सामने हम सारे जितने भी आंकड़े हैं छुपा लें और हम जून में देंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से जब कहा कि लाइए दिखाइए हमें, तो उन्होंने 2 दिन में सारी इंफॉर्मेशन दे दी और इंफॉर्मेशन आते ही सारा देश जान गया कि ये हफ्ता वसूली कौन कर रहा था। सबको पता है कि भाई रेड डाली गई और उसके बाद वहीं से चंदा आ गया। ये तो आप मानते हैं ना, हमारे युवराज जी भी सामने बैठे हैं, ये तो मानेंगे ही ना कि रेड डाली गई किसी भी संस्था पर, किसी भी कंपनी पर और उसके बाद करोड़ों रुपए उससे चंदा ले लिया गया। तो ये तो नियमित तरीके से जैसे नंबर 1 में हफ्ता वसूली होती है, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। सारी दुनिया में हाहाकार हो गया, सारे देश में हाहाकार हो गया कि बीजेपी ऐसे हफ्ता वसूली कर रही थी, ऐसे चंदा ली थी। तो 2024 के इलेक्शन इनके खतरे में पड़ गए बुरी तरह, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना ही मतलब जो है ये बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, ना ही मतलब जो है महंगाई दूर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद पता चल गया कि भाई अब तो सरकार जाने की नौबत आ गई 2024 में। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा करना ही था। सम्मन तो ईडी से आप जितने चाहे भिजवा दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी तो पॉक्सो जैसे एक्ट में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बाद में फिर जांच होती रहती है, फिर कोर्ट देखता है उसको। जीशान हैदर, ये आपने मेरे उन्हें सवाल एक का बार जवाब भी नहीं है। गिरफ्तार नहीं किया। ना ब्रिजभूषण जी शरण सिंह मेरे सवाल का जवाब है, ना इलेक्टोरल बॉन्ड। मैंने तो आपसे पूछा था कि अरविंद केजरीवाल just a minute. समन स्किप क्यों कर रहे हैं, कभी विपासना, कभी मध्य प्रदेश इलेक्शन, कभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की तैयारियां, ये सब एक्सक्यूजेज उन्होंने दिए हैं। 9 समन्स ईडी ने दिए। ऐसा नहीं है कि ईडी ने डे 1 पे जाके अरेस्ट कर लिया अरविंद केजरीवाल को। 9 समन के बाद अरेस्ट हुआ है चीफ मिनिस्टर का। युवराज, I'll come to you. I'll just let Zishan respond. कोर्ट ने कल यही तो कहा कि मतलब जो है ईडी से यही कहा कि आपको गिरफ्तार करने से किसने रोका है, आपको गिरफ्तार करने से किसने रोका है, आप क्यों सम्मन पे सम्मन भेजे जा रहे हैं, आप जाइए जाके बात कीजिए और अगर जांच में सहयोग ना हो तो गिरफ्तार कीजिए। इसका मतलब ये है कि ईडी 8-9 सम्मन देने के बाद ये ईडी के पास ना कोई भी सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो वो कोर्ट में साबित कर पाए। मनीष सिसोदिया साहब वाले मामले में 1.5 साल से कुछ साबित नहीं कर पाए और आप ये देख लीजिए संजय सिंह के मामले में साबित, अब इसमें भी कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन चूंकि ईडी आपके इशारे पर काम करती है, इसलिए वो लाके जेल में डाल देगी ताकि वो प्रचार ना कर सकें 2024 का। मोदी जी को, बीजेपी को पता है कि भाई अगर कोई शख्स टक्कर दे रहा है तो उनको उनके ही घर में केजरीवाल दे रहे हैं। बाकी पूरा देखिए इंडिया ऑपोजिशन जो है, अलायंस, इंडिया अलायंस, वो पूरा एक हो गया है और अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो सड़कों पर लोग आए हैं, अब पूरा देश का ऑपोजिशन जो है सड़कों पर आ जाएगा और ये 2024 के इलेक्शन में इसका जवाब देगा मोदी जी को कि भाई आप किसी भी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका जवाब मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है. Yuvraj, before I let you respond, let me just get in some political reactions that have come in. Also telling our viewers the latest that's coming in on this matter is that the Kejriwal matter has now been mentioned before the Chief Justice of India's bench. But let's also get you those political reactions. अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है।
हमारे यहाँ अपने देश का तो इतिहास है कि यहाँ जब किसी पे कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले इस्तीफा देता है और जब तक आरोप के बाद से बरी नहीं हो जाए तब तक वो दायित्व नहीं लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक। और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। All right, my guests on the broadcast, Yuvraj Pokrana and Zishan Haider, continue to be with us. Yuvraj Pokrana, you heard, the reactions that came in. You heard the opposition members saying that this is not something that has much substance to it. You also wanted to make a point. Please go ahead. Yeah, for the benefit of Zishan ji, I would request you to allow me to speak in Hindi. Zishan ji, आम आदमी पार्टी के समर्थकों से चर्चा Go करना ahead. Yeah. उतना ही खराब है मेरी सेहत के लिए जितना दीवार पे सिर पटकना, क्योंकि आप लोग तथ्यविहीन होते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट, उसके तहत केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। क्या दिल्ली हाई कोर्ट सेक्शन 50 को नहीं जानती? क्या आपका कहना है कि केजरीवाल और उनके गुर्गे के पार्टी वर्कर्स संविधान को ज्यादा जानते हैं कोर्ट से? दूसरी बात, ये केस सुर्खियों में कैसे आया? नरेश कुमार जी, जो तत्कालीन दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव थे, वो चीफ सेक्रेटरी टू दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने एलजी साहब को लिखित में दिया कि ये केस में इस पॉलिसी में कुछ इरेगुलरिटी है और मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। दूसरी बात, सी अरविंदम कौन है? जो सिसोदिया जी, दो डिप्टी मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के सचिव थे। तो इन लोगों ने लिखित तौर पे सरकार को, केंद्र एजेंसी को, जांच एजेंसी को लिख के दिया है कि भैया ये पॉलिसी में गड़बड़ जाला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो हम तथ्यों की बात करते हैं, आप लोग तथ्यों की बात करते नहीं है। ये आप माता हैं, पिता हैं साहब, हर गुनेगार या तथाकथित गुनेगार के माता पिता होते हैं। और अभी आपने देख लिया कि के कविता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो आपकी बात तथ्य विहीन है, इसीलिए कोई कोर्ट आपको जमानत नहीं देगी। और यदि आप इतने दूध के धुले हैं, पाक साफ है, तो काहे को ये पॉलिसी आपने इसको स्क्रैप कर दी थी? और कल की बात करते हैं, जब आप इतने पाक साफ है तो काहे कटोरा लेके आप हाई कोर्ट में गए थे कि हमको एक याचिका लेके गए थे कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए, हमारी जमानत नहीं होनी चाहिए, कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी बातें हैं, ये युवराज नहीं कह रहा है, युवराज एक माध्यम है, ये सारा ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड है। अब इसमें आप ब्रिजभूषण जी को लेके आइए, बॉन्ड को लेके आइए, वो अन्य डिबेट है, वो अलग विषय। आज का विषय वो नहीं, अभी का विषय वो नहीं। ओवर टू यू श्रेया। जी, अब मुझे इजाजत है बोलने Zishan की? ji, you want to respond? Yeah. जी। जी, युवराज जी, देखिए सबसे पहली बात तो अब यही मैं कहूंगा, आपने जो मेरे सामने ये बात रखी है, क्या आज तक ईडी कोर्ट में कोई बात साबित कर पाई? या ट्रायल भी कोर्ट ने कई बार कहा कि भाई अब बहुत देर हो गई है, अब हमें जमानत देनी पड़ेगी। देखिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो ईडी ने मतलब जो है 1.25 साल लगा दिए मनीष सिसोदिया के मामले में, और कोर्ट ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई 1.25 साल में कोई बात तो आप साबित करिए, और आप मतलब जो है लगातार सबूत ही जुटाते चले जा रहे हैं। कोई सबूत हो, कोई चीज हो तब तो आप जुटाइए उसे। उसके अलावा सबसे खास बात यह है कि केजरीवाल जी तो कहीं से कहीं तक इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। यही वजह है कि 1.25 साल से हिम्मत ही नहीं हुई ईडी की कि उनको लेके आते। लेकिन अब चूंकि 2024 के इलेक्शन है और आपको ध्यान हटाना है, ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज बनाकर कि भाई केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो गए और देखिए भ्रष्टाचार में हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब करके आप मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान उधर से हटाना चाहते हैं। जो सैकड़ों चीजें लोगों को पता है कि बीजेपी नहीं कर पा रही है, सरकार अब नहीं चला पा रही है, और 2024 में इनकी विदाई होनी तय मानी जा रही है एक तरीके से, क्योंकि ऑपोजिशन एक साथ आ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपया अभी तक, देखिए हंसने की बात नहीं है, 1 रुपया अभी तक कहीं से रिकवर नहीं हुआ है, और आप सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों पर रेड करते जाइए, उन्हें जेल में डालते जाइए, ताकि आपके खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। कोई ऐसा दूध का धुला क्या आपके यहाँ भी नहीं है? चलिए, लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट। ज़ीशान जी, आज सुप्रीम कोर्ट बेंच, आज स्पेशल बेंच जो है वो अभी कुछ ही देर में दे विल हियर दिस मैटर, एंड लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेज, बट वी लीव इट देयर। युवराज पोखराना एंड ज़ीशान हैदर, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू. Let's see how the day pans out.
Yuvraj, I have paucity of time, but I'll have to wrap it up here. Let's see how this pans out for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party right ahead of the crucial Lok Sabha elections. We will keep getting you the